नमस्कार दोस्तों, ये है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के क्वेश्चंस। मैं फिर से करा रही हूँ। ये क्वेश्चन मैं करा चुकी थी आपको, जस्ट हैव अ लुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एन टाइप सिलिकॉन बार 0.2 centimeter long and 200 micrometer square in cross sectional area. This is your area and this is the length. Okay, and has a majority carrier concentration of this much and carrier mobility is this much at 300 Kelvin. If charge of electron is this much, then resistance of bar is C. You know that sigma is equal to nq mu n, right? Now what is n? Here it is majority carrier concentration, that means it is related to n. So this is n, 5 into 10 to the power 19 per meter cube. And then just calculate the conductivity putting down the values, 5 into 10 to the power 19. Then charge is how much? It is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. Then electron mobility is how much? It is 0.23. Okay, it is 0.23. After solving you will get 1.84. Now resistivity is what? It is the reciprocal of conductivity, so it will come out to be 0.5434. Okay, now R is equal to rho L by A. Okay, so rho is what? 0.5434. Length is what? 0.2 centimeter. That means it will be 0.2 into 10 to the power minus 2. And then area is what? It is 200. 200 into 10 to the power minus 12. Getting? क्योंकि 1 माइक्रोमीटर में 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर होता है। ओके, तो ये हो जाएगा। इसको फर्दर जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका कुछ आ जाएगा, इट विल 5.434 इंटू 10 की पावर 6 ओम्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए यूनिफॉर्मली डूब्ड एन टाइप सिलिकॉन सैंपल इज, दिस इज रो 0.6 ohm centimeter. Electron mobility is how much? This much. Charge of an electron is this much and donor impurity concentration it is asking. यहाँ पे देखो जो आपका रो है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी एंड दिस इज व्हाट? इट इज 1 अपॉन एन क्यू म्यू. ओके, सो एन इज व्हाट? इट इज इक्वल टू एन डी. सो एन डी इज व्हाट? donor concentration, it is 1 upon q mu rho. Okay, this is 1 upon q mu rho. Now just put down the values, 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19, and the mobility is what? It is 1250 centimeter square per volt second. And then resistivity is what? 0.6 ohm centimeter. After solving it, it will come out to be 8.33 into 10 to the power 15 atoms per centimeter cube. A is for atoms. Next question is, the neutral base width of a bipolar transistor biased in the active region is 0.8 millimeter. See, just note down the formulas. Okay, the maximum electron concentration and diffusion constant in base are this much. Uh, this is what? Electron concentration is 10 to the power 15 per centimeter cube. Electron diffusion coefficient is 30 centimeter square per second. And what it is asking? It is asking, assuming negligible recombination in base, then the collector current density is C. J is equal to dnq into dn upon dx. So this is what? dn is 30 and q is 1.6 into 10 की power minus 19 and dn is what? Electron concentration. What it is saying, the collector, the neutral base width biased in active region. See, 30 it is given, charge you have given, and then it is asking, see, 10 to the power 15 maximum electron concentration, that means it is actually dn, 10 to the power 15. Okay, and dx is what? You have to write it like this way. Actually this is dn. Okay, and this is your dx. Okay, so this is what? dn by dx, that means it will be 0.8 millimeter. So it will be 10 to the power, I think it will be 1 centimeter is equal to 10 millimeter, right? So because it is saying 30 centimeter square, just convert na, 1 millimeter is equal to 10 to the power minus 1 centimeter, right? So 0.8 means it will be
0.8 इंटू 10 की पावर व्हाट, देखिए ना 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। आप अभी एक्चुअली मेरा ना दिमाग थोड़ा सा वो हो गया है, आप इसको देखिए, इसको कैलकुलेट कीजिए। 10 मिलीमीटर इज 1 सेंटीमीटर, सो 1 मिलीमीटर इज 0.1 सेंटीमीटर, सो 0.8 मिलीमीटर इज 0.8 इंटू 0.1, दैट मीन्स 0.08 सेंटीमीटर, इतना ही आएगा। क्योंकि एवरीथिंग यहाँ पे जो बाकी सब चीज़ें सेंटीमीटर में दिया है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इट विल कम आउट टू बी नियर अबाउट 0.08, यानी कि 8 इंटू 10 की पावर -2 आएगा ये, क्योंकि 0.8 है ये। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग व्हाट यू विल गेट इट इज, देखिए मैं सॉल्व कर देती हूँ। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, देन 0.2, देन इट विल कम आउट टू बी 2 3 जा 6, क्योंकि ये वाला तो चला जाएगा। 60 इंटू 0.2 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा, एंड अपॉन 10 की पावर -2, सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 12 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 2, 10 की पावर, ये तो 1 पॉइंट ये कुछ आ रहा है, 0.12 आ रहा है। इसको आप चेक कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है आंसर गलत दिया हुआ है, तो आप इसे एक बार चेक करिएगा, ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ा सा इसने क्या किया है, जो आंसर है, मुझे लगता है इसने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ गड़बड़ी की है। सो आंसर विल बी 0.12 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करके चेक कीजिएगा, मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what is your next question? For a heavily doped n-type semiconductor, parameters are as follows. यहाँ पे whole electron mobility ratio दिया है, mu p by mu n दिया है, doping concentration आपको दिया है, ठीक है, and intrinsic concentration आपको दिया, this is your Ni, and this is what, this is actually मैं लिख देती हूँ, this is 4.3 इंटू 10 to the power ये 8 है, ठीक है, सब समझ में आ रहा है। फॉर अ हैवली डूब्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर, पैरामीटर्स आर ये ए है, होल इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी रेशियो इज 0.4, ये 0.4 दिया है। डूपिंग कंसंट्रेशन इसका अभी हम चेक करते हैं, ये 4.3 इंटू 10 to the power 8 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है आपको, और उसके बाद आपको इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन दिया है। तो रेशियो ऑफ कंडक्टेंस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर टू दैट ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल एंड एट सेम टेम्परेचर इज, ये पूछा है आपसे। तो यहाँ पे देखिए, आप पहले तो निकालेंगे फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो सिग्मा एन इज इक्वल टू एन क्यू म्यू एन हो जाएगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यू हैव सिग्मा एन आई लिखिए या सिग्मा आई लिखिए, व्हाट इट विल कम आउट टू बी, इंट्रिंसिक में एन इज इक्वल टू पी होता है, तो क्यू डॉट एन आई, एंड दिस इज म्यू एन प्लस म्यू पी, ठीक है। अब आप इसमें देखो, यहाँ पे रेशियो ऑफ सिग्मा एन बाई सिग्मा आई, एंड दिस इज इक्वल टू एन म्यू एन हो जाएगा, एंड दिस इज विल बी एन आई एंड म्यू एन प्लस म्यू पी हो जाएगा। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी दी हुई है, अब इसमें आएगा 4.3 इंटू 10 to the power 8, एन आई कितना दिया है आपको, 1.6 इंटू 10 to the power 5, यही दिया है ना आपको, ये दिस इज योर 1.6 इंटू 10 to the 5, ये आपका n दिया है, 4.3 इंटू 10 to the power 8 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। जब आप इसको फर्दर यहाँ पे रखेंगे तो म्यू एन प्लस म्यू पी कितना हो जाएगा, म्यू पी बाय म्यू एन का रेशियो कितना दिया है, म्यू पी बाय म्यू एन का रेशियो आपको 0.4 दिया है ना, देखिए म्यू पी बाय म्यू एन का रेशियो 0.4 है, तो यानी कि म्यू पी इज इक्वल टू 0.4 म्यू एन, यही होगा ना। तो म्यू पी प्लस म्यू एन इज इक्वल टू हाउ मच, इट विल कम आउट टू बी 0.4 म्यू एन प्लस म्यू एन, सो इट विल बी 1.4 आना चाहिए ना, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 0.4, ओके। एंड आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी 4.3 इंटू 10 to the power 8 अपॉन यहाँ पे 2.24 इंटू 10 to the power 5 हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्दर सॉल्व करने के बाद आप इसको चेक अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे करके पहले से बैठी रहती हूँ। तो 1.91 इंटू 10 क्यूब है, ये गेट के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो ये मैंने आपको करा रही हूँ, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अभी कितने क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दूंगी, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, देखिए
If a donor impurity is added to intrinsic, then silicon and resistivity at room temperature is observed to be 8 ohm centimeter. The ratio of donor atoms to silicon atoms per unit volume is given by. मैं आपको इसमें बस ये बता देती हूँ, डोनर इम्प्योरिटी कोई आपने ऐड की है इंट्रिंसिक में, मतलब इंट्रिंसिक आपका क्या होता है जिसमें n इज इक्वल टू पी होता है, तो जो सिलिकॉन और जो रेजिस्टिविटी है रूम टेम्परेचर पे, इट इज़ ऑब्जर्व्ड टू बी, सिलिकॉन की जो रेजिस्टिविटी है ये 8 ओम सेंटीमीटर ऑब्जर्व की गई है, ठीक है। तो इसने पूछा द रेशियो ऑफ डोनर एटम्स, द रेशियो ऑफ डोनर एटम्स टू सिलिकॉन एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है इसने। अब ये ऐसा है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कितने कराए, 2 3 4 क्वेश्चंस कराए। अभी ऐसा करिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ये 2 क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। क्योंकि पहले आप ये फॉर्मूलेज अच्छे से याद कर लीजिए कैसे सॉल्व किया जाता है, इनकी पहले कैलकुलेशन चेक कर लीजिए कहीं कैलकुलेशन तो गड़बड़ नहीं है। ये 2 क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ओके। टिल देन प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।